number 7 title Inorganic Chemistry 2 Module number 4 title Crystal Phase Theory Distortion Color Magnetism Table of Content Learning Outcomes Introduction to Distortion from Regular Geometry Distortion in Octahedral Complex 3.1 Jahn Teller Distortion 3.2 Formation of Square Planar Complex 4th Color and Magnetism Coordination Complex 4.1 Color in Coordination Complex 4.1.1 DD Transition 4.2 Magnetic Property of Coordination Compound 5 Limitation of Crystal Field Theory 6 Summary Learning Outcome After studying this module, you shall be able to know the type of distortion occurring in the octahedral complex. Octahedral complex में कौन सा टाइप का डिस्टॉर्शन होता है. Learn the factor which influence the extent of distortion complex. कॉम्प्लेक्स में जो डिस्टॉर्शन जो है कितना एक्सटेंट तक होता है उस पर क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है. आइडेंटिफाई द रीजन फॉर कलर फॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो कलर फॉर्मेशन है उसका रीज़न क्या है. इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर वेरियस ट्रांजिशन मेटल. अलग अलग ट्रांजिशन मेटल आयन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का क्या वैल्यू है. इंट्रोडक्शन टू डिस्टॉर्शन फ्रॉम अ रेगुलर ज्योमेट्री. तो रेगुलर ज्योमेट्री से डिस्टॉर्शन इंट्रोडक्शन होता है. Some of the complex having 6 surrounding ligands possess structures which are not octahedrally symmetric and are considered to be tetragonally distorted. तो कुछ कॉम्प्लेक्स जो है जिसका 6 से लिगैंड सराउंडेड रहता है स्ट्रक्चर में वो ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री नहीं रहता और उसको टेट्रागोनल डिस्टॉर्टेड माना जाता है. दिस इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स. इसमें कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स जो रहता है वो ज़्यादा है उसमें डिस्टॉर्शन है. Other species such as D8 compound have only 4 ligand possessing a square planar geometry. D8 compound के पास 4 ligand है जो square planar geometry दिखाता है. The ligand field effect is different for octahedral and tetrahedral complex. So ligand field effect. Other species such as D8 compound have only 4 ligand possessing a square planar geometry. D8 compound जिसमें 4 ligand और square planar geometry दिखाता है. The ligand field effect is different for octahedral and tetrahedral complex. Ligand field effect जो रहता है octahedral tetrahedral complex दोनों में अलग अलग रहता है. But generally to explain the concept of octahedral case is used for the tetragonal and square planar geometry. तो ये कंसेप्ट को जो है एक्सप्लेन करता है ऑक्टाहेड्रल केस को जहाँ पे टेट्रागोनल स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री दोनों भी यूज़ होता है. बाय स्ट्रेचिंग द लिगैंड एट जेड एक्सिस प्रेफर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड. तो जेड एक्सिस में लिगैंड स्ट्रेच होता है और ऑक्टाहेड्रल टेट्रागोनल कंपाउंड जनरेट होता है. डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डिस्टॉर्शन. जहान टेलर डिस्टॉर्शन. It is defined as if for non-linear complex ground state electronic configuration is orbitally degenerate, then in order to remove the degeneracy complex will be distorted and lower energy is achieved. तो non-linear complex के केस में ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है और ऑर्बिटली डिजेनरेट होता है ऑर्डर में ताकि डिजेनरेसी कॉम्प्लेक्स को रिमूव कर सके और वो distorted होता है, lower energy achieved होता है. In other words, it can also be said that there cannot be unequal occupation of orbital with identical energy, and if it is so, the molecule will distort itself to eliminate degeneracy. दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ऑर्बिटल का जो अनइक्वल ऑक्यूपेशन जो है वो आइडेंटिकल नहीं रहता एनर्जी से और मॉलिक्यूल जो डिस्टॉर्ट होता है अपने आप ताकि डीजेनरेसी मतलब इक्वल एनर्जी को एलिमिनेट कर सके. The Jahn Teller effect only predict that which of the structure will undergo distortion. Jahn Teller सिर्फ इतना ही बताता है कौन सा स्ट्रक्चर डिस्टॉर्शन में चला जाएगा. But it cannot tell the nature, the extent of distortion and geometry of the distorted complex form. लेकिन जॉन टेलर ये नहीं एक्सप्लेन कर सकता है कि उस स्ट्रक्चर का नेचर क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है और कितना हद तक उसका डिस्टॉर्शन होगा या जो कॉम्प्लेक्स बना है डिस्टॉर्टेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है उसका ज्योमेट्री क्या रहेगा वो नहीं बता सकता. In the case of octahedral complex we have two set of orbital.
ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्स के केस में हमारे पास दो सेट ऑर्बिटल है ईजी विच पॉइंट डायरेक्ट एट द अप्रोचिंग set of ligand T2G lie in between the axis and hence are not placed in the root of the ligand directly. तो EG ऑर्बिटल जो है डायरेक्टली उस सेट पे है लिगैंड का डायरेक्टली वहाँ पर है जहाँ पे लिगैंड अप्रोच करते हो T2G जो है वो एक्सिस के बीच में रहता है और वो लिगैंड से डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है. Now since each orbital are having high interaction with ligand, then Jahn Teller is more pronounced in the case which include high spin d4. तो EG ऑर्बिटल जो है इसका इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है लिगैंड से तो जहाँ टेलर डिस्टॉर्शन जो है ज़्यादा प्रोनाउंस होता है हाई स्पिन D4 कॉम्प्लेक्स में लो स्पिन D7 एंड D9 कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ तक लो स्पिन D7 और लो स्पिन D9 कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा प्रोनाउंस दिखता है मतलब ज़्यादा विजिबल दिखता है जहाँ टेलर डिस्टॉर्शन इफेक्ट. Distortion in the case octahedral is also called tetragonal distortion. जो octahedral complex का distortion का केस है उसको tetragonal distortion भी बोलते हैं. ये फिगर है D4 जब हाई स्पीड में रहता है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ईजी में चला जाता है तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन दिख रहा है. क्रोमियम 2 और मैंगनीज 3 में ये दिखता है डिस्टॉर्शन. फिर कोबाल्ट 2 निकल 2 में जब D7 कॉन्फ़िगरेशन रहता है तो ये लो स्पिन दिखाता है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन भर गया T2G में तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 7th वो फाइनली EG ऑर्बिटल में जाता है. फिर D8 भी लो स्पिन में रहता है. कोबाल्ट 1 निकल 2 पैलेडियम 2 लिथियम 1 प्लैटिनम 2 ऑरियम 3 यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन T2G में भर जाता है बाकी का 2 इलेक्ट्रॉन EG में भरता है. ये भी डिस्टॉर्शन इफेक्ट दिखा रहा है. यहाँ पे कॉपर 2 और सिल्वर 2 D9 डिस्टॉर्शन ये भी लो स्पिन है तो यहाँ पे 6 का 6 इलेक्ट्रॉन T2G में है और बाकी का 3 इलेक्ट्रॉन D9 में है. Consider a D4 or D9 situation. The octahedral geometry degenerates in the last electron can occupy either of the two orbitals, the dx2, y2 or dz2 in the EG level. D4 D9 सिचुएशन में ऑक्टेडो ज्योमेट्री जो है सेम एनर्जी केस में रहता है जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है दोनों ऑर्बिटल सेट में ऑक्यूपाई होता है dx2 y2 या फिर dz2 EG लेवल में. Thus, Jahn Teller distortion occur in which the EG level splits into dz2 orbital and dx2 y2 orbital and the degeneracy of the EG level is lifted. Jahn Teller distortion जो रहता है यहाँ पे EG level split होता है dz2 orbital में और dx2 y2 orbital में. यहाँ पे EG level का degeneracy uplift होता है. When degeneracy is low by distortion decrease in energy take place. तो यहाँ पे डिजेनरेसी जो है ख़त्म होता है डिस्टॉर्शन जब एनर्जी कम होता है. एट द सेम टाइम वैल्यू ऑफ CFSC इंक्रीज सेम टाइम में CFSC वैल्यू भी कम होता है. टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन रिजल्ट फ्रॉम कंप्रेशन x एंड y एक्सिस एंड इलोंगेशन ऑफ z एक्सिस और वाइस वर्सा. टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन जो होता है वो एक्स और वाई एक्सिस का कंप्रेशन से और जेड एक्सिस के इलोंगेशन से होता है. दिस इफेक्ट इज नॉट सेम फॉर ऑल द कॉम्प्लेक्स. इट वेरीज विद द ज्योमेट्री एंड नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स. ये इफेक्ट जो रहता है सभी कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं रहता और कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री और नेचर वेरी करता है. यहाँ पे T2G में 3 ऑर्बिटल है तो dxz dyz और dxy. यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो यहाँ पे नीचे वाला 1/3 ऊपर वाला 2/3 सिग्मा इलोंगेशन होगा. यहाँ पे नीचे dxy है और ऊपर dxz dyz है. कंप्रेशन 1/3 ऊपर रहेगा सिग्मा 2/3 सिग्मा नीचे होगा कंप्रेशन. यहाँ पे EG का 2 ऑर्बिटल है dz2 1/2 सिग्मा होगा ऊपर dx2 y2 1/2 सिग्मा होगा तो
इलोंगेशन ई जे ऑर्बिटल यहाँ पे डी एक्स को वाई से 1/2 सिग्मा डी जेड स्क्वायर 1/2 सिग्मा, तो कंप्रेशन होगा। D9 का केस कंसिडर करेंगे। Where last electron has to occupy the EG set or orbital lying higher in the energy. D9 के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो EG सेट EG ऑर्बिटल में रहता है जिसका एनर्जी ज़्यादा है। The electron has a choice to occupy either a dx2y2 or dz2 orbital since both of them are degenerate in energy. इलेक्ट्रॉन जो रहता है dx2y2 या फिर dz2 ऑर्बिटल में रहता है, वैसे भी दोनों का भी एनर्जी जो रहता है डीजेनरेट रहता है एनर्जी में। If the energy goes to dz2 orbital, the orbital interaction of the electron will with the approaching ligand will lead to lowering in the energy of dz2 orbital and thus will lead to tetragon elongation wherein z axis is elongated. इलेक्ट्रॉन जो है dz2 ऑर्बिटल में जाता है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल इंट्रैक्शन अप्रोच करता है लिगैंड को, जिसकी वजह से dz2 ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है और टेट्रागोन इलोंगेशन होता है, z एक्सिस जो इलोंगेटेड रहता है। दिस हैपन बिकॉज of the presence of extra electron in the dz2 orbital which now repel the incoming ligand along the z axis to a greater extent as compared to x and y axis. तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस dz2 ऑर्बिटल में रहते हुए रिपल करता है इनकमिंग लिगैंड को जो z एक्सिस में रहता है ग्रेटर एक्सटेंट में और कंपेयर होता है x और y एक्सिस में। Consequently, the x-axis is elongated relative to the x and y axis. तो z-axis elongate होता है x और y axis में. In the otherwise situation, if the last electron enter in the dx2y2 orbital, the orbital interaction will lead to lowering the energy of dx2y2 orbital. दूसरे सिचुएशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन जब एंटर होता है dx2y2 ऑर्बिटल में तो ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है, इसकी वजह से dx2y2 ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है। The x and y axis are elongated and z axis appear to be compressed. तो x and y axis elongated है और z axis जो है compressed रहता है टेट्रागोनल compression के केस में। Number of electron 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे W का मतलब है weak Jahn Teller effect, expected T2J orbital unevenly occupied. S जो है strong Jahn Teller effect, expected EJ orbital unevenly occupied. No entry, no Jahn Teller expected. Number of electron एक रहेगा तो हाई स्पिन Jahn Teller वीक रहता है और लो स्पिन Jahn Teller भी वीक रहता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 तो हाई स्पिन Jahn Teller भी वीक रहता है और लो स्पिन Jahn Teller भी वीक रहता है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हाई स्पिन और लो स्पिन जो है वो बिल्कुल नहीं है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन Jahn Teller स्ट्रॉन्ग रहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है EJ ऑर्बिटल में और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है वो T2J में रहता है तो इसलिए वीक रहता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन Jahn Teller डिस्टॉर्शन जो है होता नहीं है, ठीक है। लो स्पिन में वीक रहता है। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हाई स्पिन Jahn Teller वीक रहता है, लो स्पिन Jahn Teller डिस्टॉर्शन नहीं होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 में Jahn Teller हाई स्पिन Jahn Teller वीक रहता है और लो स्पिन Jahn Teller स्ट्रॉन्ग रहता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 यहाँ पे हाई स्पिन Jahn Teller नहीं होता, लो स्पिन Jahn Teller भी नहीं होता। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 यहाँ पे हाई स्पिन Jahn Teller स्ट्रॉन्ग होता है, लो स्पिन Jahn Teller स्ट्रॉन्ग होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 तो यहाँ पे हाई स्पिन लो स्पिन Jahn Teller दोनों भी नहीं होता है। The T2J orbital are also affected by the distortion, but since they lie in between axes, their extent of distortion is less.
तो T2 जो ऑर्बिटल जो इफेक्ट नहीं होता डिस्टॉर्शन की वजह से, और वैसे भी ये डिस्टॉर्शन के एक्सटेंट में एक्सिस में रहता है. For the tetragonal elongation, the orbital from T to G said have contribution from Z or component will go down in energy and compression to the orbital having greater contribution from X and Y component. तो tetragonal elongation जहाँ पे T to G set जो है orbital का, जहाँ पे contribution जो रहता है Z component का, वो एनर्जी के नीचे जाएगा और कंप्रेशन में रहता है ऑर्बिटल के, जहाँ पे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है एक्स और वाई कंपोनेंट में. दिस हैज़ बीन शोन इन फिगर 2. ये फिगर 2 में दिखाया है. इफ tetragonal distortion is fluxional, that is the extent axis in tetragonal distortion is time dependent. tetragonal distortion fluxional है, मतलब एक्सिस एक्सटेंड होता है tetragonal distortion में, time dependent है. But if existence of one fluxional deform is shorter than the time scale of measurement, लेकिन एक फ्लक्शनल फॉर्म एग्जिस्ट करता है जिसका मेजरमेंट टाइम स्केल बहुत ही छोटा रहता है उससे, देन वन ओनली एन एवरेज स्ट्रक्चर विल बी सीन. तो एवरेज स्ट्रक्चर दिखता है. व्हेन elongation along each of the axis is equal favorable, एक्सिस के हर जगह पे elongation जो फेवरेबल होता है. As in the case of copper H2O6 2 plus ion where all the ligand are the same. copper H2O6 2 plus ion के केस में ligand जो है सेम रहता है. Observed average geometry is the octahedral geometry. जो observed average geometry octahedral geometry. This fluctuational variation of the distortion from one orientation to another is called dynamic Jahn Teller effect. तो dynamic Jahn Teller effect क्या रहता है? डिस्टॉर्शन का फ्लक्चुएशनल वेरिएशन एक ओरिएंटेशन से लेकर दूसरे तक, उसको बोलते हैं डायनेमिक जहान टेलर इफेक्ट. फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन. इन द एक्सट्रीम केस ऑफ टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन, the z-axis is also much elongated that ligand along it are seen as not being present in the vicinity at all. तो टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन एक्सट्रीम केस है जहाँ पे z एक्सिस जो है इलोंगेटेड रहता है, लिगैंड जो रहता है वो एकदम नज़दीक में नहीं रहता है. The dz2 orbital will be the lowest in energy as it has negligible interaction with the ligand field. तो dz2 orbital जो रहता है उसका एनर्जी कम रहता है क्योंकि negligible interaction रहता है ligand field के साथ. Give rise to situation where instead of 6 only 4 ligands are present above the metal center, leading to square planar geometry. तो इसकी वजह से 6 की ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे 6 और 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते मेटल सेंटर पे, जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देता है. This kind of distortion occur when ligand field stabilization energy of the orbital complex is smaller than the new complex form. तो इस टाइप का डिस्टॉर्शन कब होता है? जब लिगैंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो रहता है ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स का काफ़ी छोटा रहता है, नए कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है. फॉर एग्जांपल इफ द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स इज इन एन ऑक्टाहेड्रल D9, T2G6EG3 complex, the tetragonal distortion will mean that the two of the electron in the EG orbital move to lower energy and the other one to high energy, so net reduction in energy takes place. तो यहाँ पे D9 ऑक्टाहेड्रल जो उसका ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे T2G6EG3 कॉम्प्लेक्स होगा, टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन होगा. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दो EG ऑर्बिटल में होगा जो लोअर एनर्जी में चला जाएगा और दूसरा हाई एनर्जी में जाएगा जिसका टोटल रिडक्शन जो रहेगा उसका एनर्जी चला जाएगा. एंड डिस्टॉर्टेड इन्वायरमेंट इज मोर स्टेबल. डिस्टॉर्टेड इन्वायरमेंट ज़्यादा स्टेबल होगा. इन द DH सिचुएशन द एक्सट्रीम ऑफ डिस्टॉर्शंस गिव फुल ऑक्यूपेशन ऑफ लोवेस्ट लाइन DZ2, DXZ, DYZ and DXY orbital and an empty DX2, Y2 orbital also result in high value of CFSA. तो DH सिचुएशन में
डिस्टॉर्शन जो रहेगा एक्सट्रीम रहेगा, जो डी जेड टू डी एक्स जेड डी वाई जेड और डी एक्स वाई ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करेगा, और एम टी ऑर्बिटल डी एक्स टू वाई टू ऑर्बिटल जो रहेगा खाली रहेगा, उसकी वजह से सी एफ सी का वैल्यू जो है कम हो जाएगा. फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. In the square planar complex, the energy of the orbital are different, so splitting of orbital takes place. तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में डी ऑर्बिटल का एनर्जी जो है उसका स्प्लिटिंग वो काफ़ी अलग रहता है, तो ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग भी होता रहता है. The sum of the three intermediate splitting parameter is a total splitting parameter. तो तीन इंटरमीडिएट स्प्लिटिंग पैरामीटर का टोटल जो रहता है वो टोटल स्प्लिटिंग पैरामीटर डेल्टा एस पी रहता है, एंड इट इज़ ग्रेटर देन the octahedral splitting parameter delta SP is 1.3 delta O. तो यहाँ पे टोटल स्प्लिटिंग जो रहता है ज़्यादा रहता है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग पैरामीटर से, सो डेल्टा एस पी जो रहता है इक्वल रहता है 1.3 डेल्टा ओ से. स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग डेल्टा इसका वैल्यू रहता है 1.3 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से. The removal of the two ligands on the z-axis of octahedron result in formation of square planar complex. Therefore, one can derive the orbital splitting diagram for square planar coordination from the octahedral geometry. तो जब दो लिगैंड को रिमूव करते हैं ऑक्टाहेड्रॉन का जेड एक्सिस से तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है. Therefore, one can derive the orbital splitting diagram for square planar coordination from the octahedral diagram. तो इसीलिए ऑर्बिटल स्प्लिटिंग डायग्राम होता है स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन के लिए ऑक्टाहेड्रल डायग्राम से. When ligand move away along the z-axis, dz2 orbital falls the most, and as its electron concentrated in the lobes along the z-axis. तो ligand जो है z-axis से दूर जाता है तो z2 ऑर्बिटल जो है आता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है z-axis पे. Their dxz and dyz orbital are drop in energy. तो dxz dyz orbital जो रहता है उसका एनर्जी कम होता है, but not as much. Conversely, dx2 y2 and xy orbital increase in energy. तो dx square y square और dxy orbital जो है इसका एनर्जी चेंज होता है. dxy dyz square planar dx square y square dz square.